Grammar, vocabulary, and practice. The three prerequisites for learning English. Or, by the way, any language, we need grammar, vocabulary, and practice. The technical name of practice is RPS, receptive and productive skills. In receptive skills, we receive information by reading and listening, and in productive skills, we produce information by speaking and writing. Yesterday, we discussed that language needs three things. There are three prerequisites for learning of any language, including English. So, number one is grammar, number two is vocabulary, and number three is RPS, receptive and productive skills or practice. So today in this class, we will do all the three things: grammar, vocabulary, and RPS. Please make another comment once again so that you inculcate it. You make it like by repetitive use, you familiarize yourself with this paradigm, PARADIGM. Paradigm means model. So this model, paradigm shift, when we change the model. There are three prerequisites for the learning of any language, including English, which are as follows: colon, number one, grammar, number two, vocabulary, number three, RPS, receptive and productive skills. In receptive, we receive information by listening and reading, and by productive skills, we produce information by speaking and writing. Please remember it and come live in Save 2 and on your Facebook and deliver a short clip. You can use it in TikTok or in YouTube or Facebook or Instagram. Three prerequisites for learning English language. Number one, grammar. Number two, vocabulary. Number three, RPS, receptive and productive skills. In receptive skills, we receive information by listening and reading, and by productive skills, we give information, we produce information by speaking and writing. So you can make a short clip of video and share it. So who will make this clip? Who will make this clip? Please write a commitment, write a comment. I will make a short clip, a video clip, and I will say there are three prerequisites for learning English language. Number one, grammar. Number two, vocabulary. Number three, RPS. RPS means receptive and productive skills. In receptive, we receive information by reading and listening, and by productive, we produce information by speaking and writing. So make a small video, please, and share it in Save 2. You can make it as a TikTok, and you can use it on your YouTube, anywhere. This will be your own practice, and also other people will get benefit out of it. तो एक छोटा सा क्लिप बनाएं और इसमें ये बात करें, और ये आपका अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा. आपको एक ज़बरदस्त किस्म का कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने एक क्लिप बनाया, मैंने वीडियो बनाई, मैंने लोगों को बताया कि अंग्रेज़ी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है. एंड जस्ट स्पीक इन इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, बिकॉज दैट इज़ फॉर योर ओन प्रैक्टिस. आप किसी और को वो टीच नहीं कर रहे, आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो दिस इज़ योर one commitment.
कि आप लोग जो है खुद ही जो है एक प्रैक्टिस करें। पब्लिक में स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक स्पीकिंग, फेस द पब्लिक, फेस द कैमरा। दिस इज लाइक यू आर फेसिंग द एग्जामिनर। एग्जामिनर को फेस करना इस तरह है जैसे कि आप पब्लिक को फेस करते हैं या कैमरे को फेस करते हैं। ओके, so we continue now with the topic. Number 1 is grammar. The technical definition of grammar is that grammar is the combination of morphology, syntax, semantics, and phonology. Please write it. The technical definition of grammar is that grammar is the combination of morphology, syntax, semantics, and phonology. So in your video you can add this part also. What is grammar? It is the combination of morphology, syntax, semantics, and phonology. Please write it as a comment. जिन लोगों का इसका नहीं पता स्पेलिंग्स का, तो आपके कमेंट पढ़ के उनको स्पेलिंग पता चल जाएगा. What is grammar? As Imran Khan has written, the technical definition of grammar is that grammar is the combination of morphology, syntax, semantics, and phonology. This is the technical definition, academic definition. What is morphology? Structure of words, spellings, etymology, prefix, suffix, stem, root. जब वर्ड का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका साख देखते हैं कि एक वर्ड के अंदर क्या क्या है. डी, वो, लप, मंट. डी प्रीफिक्स, वलप स्टेम और रूट, मंट सफिक्स. वेयर फ्रॉम द वर्ड डेवलपमेंट कम्स, ये कहां से आया है. सो द स्पेलिंग ऑफ डेवलपमेंट, all these things we study in etymology, etymology. So etymology is part of morphology, that how the structure of a word, एक word का structures, yes, syllables, structure, all this we study in grammar, in morphology, part of morphology. Syntax is the study of sentences. आपने sentences जो है उसको अब सिर्फ अल्फाज नहीं है, हमने अल्फाज को फिर मिलाना भी है. तो ये जो मिलाने वाला चक्कर है, that is syntax. Development is highly essential for the prosperity of any society. Development is highly essential for the prosperity of any society. अब हमने डेवलपमेंट को बाकी अल्फाज के साथ मिलाया. सो दिस इज कॉल्ड सेंटेक्स. अल्फाज को एक दूसरे से मिलाना, दैट इज सेंटेक्स, SYNTAX. नंबर 3 इज सेमेंटिक्स, कि भाई इसका मतलब क्या है, ये बात जो आपने की इसका मतलब क्या है. सो सेमेंटिक्स, दैट इज द स्टडी ऑफ मीनिंग. माना, क्या मतलब है. ठीक है. इन टुडेज टॉपिक यू सी कॉन्टेक्स्ट, मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, लिटरल मीनिंग, मेटाफोरिकल मीनिंग, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग. अब मीनिंग जो है वो भी 3 किस्म का मीनिंग है. नंबर 1 इज लिटरल, LITERAL, लिटरल, लफ्जी. जो लफ्ज है वही उसका माना है. ठीक है. अब डेवलपमेंट का मतलब तरक्की है. फिर डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्रोग्रेस में क्या फर्क है. फिर डेवलपमेंट जब हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, तो वो फिर साइकोलॉजी में है. तो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स का अपना डेवलपमेंट है.
तो ये चीजें फिर हम कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं कि भाई ये डेवलपमेंट हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं. सो लिटरल, मेटाफोरिकल और लिटरेरी और फिगरेटिव और इडियमेटिक एंड कॉन्टेक्सचुअल. तो फिर मीनिंग की 3 किस्में हैं. ठीक है, आप अपने दोस्त के साथ बात करते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, बाप के साथ करते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है. अल्फाज वही है, सियाक व सबाक, कॉन्टेक्स्ट. सो दिस वी स्टडी इन semantics. And the last one is phonology, where we study the sounds, because English language has 44 sounds and only 26 letters. So there is a huge problem how to represent 44 sounds with the limited number of 26 letters. It's a big problem in English, and this problem we don't have in Urdu, Pashto, Punjabi and other languages. Sindhi, Baluchi, this problem is not there. That's why English is highly complicated. The problem is that there are 26 letters, A, B, C, 26. Sounds are 44. ठीक है, अब 6 है, 6, चेयर, तो इसके लिए इंग्लिश में कोई लेटर नहीं है. और फिर एक लेटर कभी एक आवाज देता है, कभी दूसरा देता है. कार, CAR, तो C जो है वो काप का आवाज देता है. ठीक है, लेकिन फिर हम कहते हैं साइटेशन, साइट, CITE, तो फिर वो सिन का आवाज देता है. सो वी हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम इन इंग्लिश, सीरियस प्रॉब्लम. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इंग्लिश की जो हरूफ है वो 26 है, जो इंग्लिश में आवाजें है वो 44 है, 44. सो हाउ टू कवर दिस गैप, इस गैप को हम कैसे कवर करें? सो वी डिसाइड दैट इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज. फोनोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं, फोनोलॉजी का मतलब है आवाज का इल्म, आवाजें. So we study that English is not a phonetic language. ठीक है ना, इंग्लिश जो है वो फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है, ये आवाज वाली जबान नहीं है. जैसे कि उर्दू है वो आवाज वाली जबान है. उर्दू इज फोनेटिक लैंग्वेज. जो आप बोलते हैं वही आप लिखते हैं. मसलन आप लिखते हैं आदमी, तो अलिफ दाल मिम ये आदमी. लेकिन मैन, MAN, को ये जो ए है ये मान क्यों नहीं है, या मैन जो है वो कैसे है मेन, तो वो फिर वो उसकी आवाजें जो है वो दैट इज नॉट द सेम. ठीक है, ब्राइट, BRIGHT, तो इसमें ये GH की क्या जरूरत है? आप सिंपल लेके ब्राइट, BRAIT. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी स्टडी इन फोनोलॉजी. Now, the simple definition of grammar is that grammar is the study of the rules of business of language. Rules of business of language. Rules of business of language. Language का जो business है उसके क्या उसूल है? Rules क्या है? He does not go. I do not go. तो आई के साथ डू नॉट, ही के साथ डज नॉट, ये रूल है. एंड दिस रूल इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. आज मैंने आपको नोट्स दिए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे कि भाई आई के साथ डू नॉट आएगा, ही के साथ डज नॉट आएगा, दे के साथ डू नॉट आएगा. ये रूल है और ये रूल हमें ग्रामर बताता है. नाउ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि भाई सब्जेक्ट और वर्ब एग्री करेंगे, दरमियान में कोई और लोग आ जाएंगे तो उसकी कोई अहमियत नहीं है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दिस इज अ रूल, इसको आप वायलेट नहीं कर सकते. ही का अपना रूल है, आई का अपना है, दे का अपना है, एवरीवन का अपना है, ईच का अपना है.
तो ये सारा जो वी स्टडी दिस इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज इस ग्रुप में मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं और इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। दिस इज़ हाईली एसेंशियल। अच्छा, ये वैसे तो हमें आसान लगता है कि भाई मुझे पता है कि आई डू नॉट, ही डज नॉट, लेकिन ये फिर जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन इज हियर, तो ज्यादा लोग समझे कि एवरीवन का मतलब ज्यादा लोग है, प्लूरल है, तो मैं कहूंगा एवरीवन आर हियर, ये नहीं है। तो ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, ईच, एवरीवन, समवन, ये लगते तो प्लूरल है लेकिन ये असल में सिंगुलर है। देन वी हैव कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स का अपना प्रॉब्लम है। कलेक्टिव नाउन समटाइम इट कैन बी प्लूरल, समटाइम इट कैन बी सिंगुलर। है तो कलेक्टिव, मजमुआ है कलेक्टिव, लेकिन कभी ये जो है सिंगुलर होते हैं, कभी प्लूरल होते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट हमने देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तानी टीम गोज टू ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तानी टीम गोज टू ऑस्ट्रेलिया, तो ये जो टीम है ये इसके साथ गोज आएगा क्योंकि हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीम आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तानी टीम गो टू ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों ठीक है। गोज टू ऑस्ट्रेलिया भी ठीक है, गो टू ऑस्ट्रेलिया भी ठीक है। तो ये आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आप एक एक मेंबर की बात कर रहे हैं, फिर तो प्लूरल है, फिर तो वो गो होगा। या आप पूरी टीम को इकट्ठा समझते हैं, एक ग्रुप, एक एंटिटी, एक वजूद, सो देन दैट विल बी गोज। तो टीम गोज, टीम गो, दोनों ठीक है। व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट क्या है? सियाको सबाक क्या है? तो गोज टू ऑस्ट्रेलिया, गो टू ऑस्ट्रेलिया, बोथ आर करेक्ट। समटाइम वी हैव कंपाउंड सब्जेक्ट्स। कंपाउंड मुरक्कब होते हैं, और मुरक्कब हम दो चीजों से ज्यादातर बनाते हैं, या एंड से बनाते हैं या और से बनाते हैं। एंड, और, नॉर। तो मैं जब कहता हूं ही एंड शी आर माई फ्रेंड्स, तो ही, शी, ये है तो सिंगुलर सिंगुलर, लेकिन एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, ये मुरक्कब है, इसमें दो सब्जेक्ट्स है, ही भी है और शी भी है। सो ही एंड शी आर माई फ्रेंड्स, ARE। लेकिन एंड की जगह जब मैं और लगाऊंगा या नाइदर नॉर लगाऊंगा तो फिर चेंज हो जाएगा। ही और शी इज माई फ्रेंड, इज फिर लगेगा, क्योंकि ही और शी में भी हमने एक लेना है, दो नहीं लेने। तो इस वजह से फिर हालांकि वही ही शी है, लेकिन दरमियान में और आ गया, तो और की वजह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेंज हो गया। नाइदर शी नॉर ही इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, आर नहीं। सो दिस इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। Sometimes subject is important, not the additional things. अब सेंटेंस में और भी चीजें होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इज वेरी लेस टुडे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इज लेस टुडे, इज नंबर के साथ इज आएगा। हालांकि पेरेंट्स, स्टूडेंट सारा प्लूरल है, लेकिन जो हमारा वो है सब्जेक्ट है, वो नंबर है, वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स नहीं है। सो यह जो है थोड़ा सा लिटिल मेंटल जिम्नास्टिक्स
यू हैव टू यूज अ लिटिल योर इंटेलिजेंस। थोड़ा सा अपनी जहानत को अपनी यूज करना है। अब ए वी नहीं लिख सकते, ए वी हम लिख सकते हैं आई डू नॉट गो, शी डज नॉट गो। ये तो ए वी हमारी इधर चढ़ गया है, तो इसके लिए कोई ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो बाकी चीज़ें हैं, वी हैव टू स्टडी दैट इन डिटेल विद अ लिटिल यूज ऑफ माइंड। ये जो क्रिएटिविटी है, जो नई नई चीज़ें होती है, तो उसके लिए आपको दिमाग जो है थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा। यू हैव टू फोकस, यू हैव टू बी मेंटली अवेयर, अवेक कि मैं क्या कह रहा हूं, कौन सा मेरा सब्जेक्ट है, कौन सा मेरा वर्ब है। इसके लिए आपको यू हैव टू बी अलर्ट, अलर्ट होना पड़ेगा। यू हैव टू बी अवेक, कॉन्शियस, विजिलेंट। सो दैट इज subject verb agreement, which is an important part of grammar rules. The second main part of my today's lecture, that is vocabulary. Now for vocabulary we have common vocabulary, ordinary vocabulary and extraordinary vocabulary. तो एक हमारा जो है ordinary vocabulary है, तो उसके लिए जो है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को करना पड़ेगा। ग्रामर इज पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लस सेंटेंस। सेंटेंस इज एक्चुअली ग्रामर, क्योंकि सेंटेंस बनता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो व्हेन यू हैव कमांड और पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। स्पीच here means language. Why speech? Because previously people would not write in language, they would only speak. पुराने ज़माने में लोग जो है किसी भी ज़बान को लिखते नहीं थे, सिर्फ बोलते थे। अभी भी पाकिस्तान में बहुत सी ज़बानें हैं, हिंदको और काफ़ी हद तक ये पटुहारी वगैरह, पहाड़ी, बलूची भी कोई ख़ास नहीं लिखी जाती। पश्तो पाकिस्तान में नहीं लिखी जाती, अफ़गानिस्तान में लिखी जाती है। सो लैंग्वेज का राइटिंग और चीज़ है, स्पीकिंग और चीज़ है। सो यूजुअली इट इज स्पीकिंग, दैट्स व्हाई वी कॉल इट parts of speech. Parts of speech. So we have ordinary vocabulary and we have extraordinary vocabulary. Now, when we know the ordinary vocabulary, that is for day-to-day situations. Man, woman, boy, girl, cup, table, book, chair. So this is ordinary vocabulary. But when we talk about extraordinary vocabulary, so we also call it terminology. उसको फिर हम terminology भी कहते हैं, इस्तिलाहात. So that is special glossary in a particular subject. एक खास मजमून की जो ज़बान है, जो vocabulary है, that is extraordinary vocabulary. एग्जाम में आपको मार्क्स मिलते हैं extraordinary vocabulary के. How technical you are. For example, climate change, you are writing on climate change, so you write chlorofluorocarbons, okay, CFCs. You write fossil fuels. You write non-renewable resources of energy, renewable sources of energy, deforestation, desertification. तो ये जो अल्फाज है, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोकेबुलरी। तो जब आप ये वोकेबुलरी यूज करते हो, सो देन दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो टॉपिक के मुताबिक आपके पास वोकेबुलरी होनी चाहिए, दैट इज हाईली एसेंशियल। खामखा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करना, इट इज काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव खामखा लोगों को मुतासिर करना कि जी मुझे बड़ी मुश्किल अल्फाज आते हैं। नो, इफ देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट, डोंट यूज इट। काउंटर प्रोडक्टिव मीन्स, प्रोडक्टिव का मतलब है कि प्रोडक्शन आ रहा है, कोई अच्छी चीज है, बज़ाहिर वो अच्छी चीज है, लेकिन वो काउंटर है। काउंटर का मतलब है उल्टा, ठीक है। कभी कभी लुक बिजी, डू नथिंग। आप समझते हैं कि मैं कोई बड़ा तीर मार रहा हूं, कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, लेकिन वो गलत है। मेरे बड़े बड़े दोस्त जो है वो इस वजह से वो फेल हो गए CSS में, कि वो बड़े बड़े अल्फाज यूज करते थे एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए, विदाउट कॉन्टेक्स्ट।
कॉन्टेक्स्ट के बगैर, किसी वजह के बगैर अल्फाज इस्तेमाल करो खामखा। कोई टेक्निकल सब्जेक्ट है, यस, यू हैव टू यूज टर्मिनोलॉजी, वो फिर बुरा नहीं लगता। फिलॉसफी है तो आप यू स्टडी पोस्ट मॉडर्निज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्रेगमेटिज्म, न्यू प्रेगमेटिज्म, ट्रांसेंडेंटलिज्म, एम्पेरिसिज्म। अभी कितने बड़े बड़े अल्फाज हैं, लेकिन ये फिलॉसफी की ABC है, तो वहाँ ही बुरी नहीं लगते। सो दिस डिपेंड्स हाउ यू प्रोसीड विद योर writing. So now I finish. If you have any question, please ask and tell me about your city or town and use some beautiful sentence structure, and I will check also your subject verb agreement. So let's start. अभी आपकी दो काम है, या क्वेश्चन करे और साथ जो है ना अपने राइटिंग भी करे, दोनों भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। टेल मी अबाउट योर विलेज, योर टाउन, योर सिटी। आपकी सिटी के बारे में मुझे ज़रा बताइए, आपका गांव है या कस्बा है? Complete subject is that when the impression or the meaning that is complete. For example, I say he is coming, so this may not be complete in the context if you did not use the noun before. But if I say Ali is coming, so this is a complete subject because we know who is Ali. कुछ लोग ये इट, वन ज्यादा यूज करते हैं और हमें पता नहीं था कि किस चीज के बारे में है। सो यू कैन नॉट यूज प्रोनाउन फर्स्ट, यू हैव टू यूज फर्स्ट नाउन and then replace the noun with pronoun. So please write a few sentences on your village, town or city. Keep in mind subject verb agreement and your sentence structure, and please use some impressive vocabulary, some terminology like urbanization, town planning. नोट्स जरूर पढ़ा करें, डेली नोट्स जो मैं आपको देता हूं, हाईली इसेंशियल। अगर आपको ज्यादा लगते हैं, एक रीडिंग तो कम से कम दिया करें। प्लीज राइट पैराग्राफ्स, थोड़ा सा छोटा पैराग्राफ लिखे, एक एक सेंटेंस नहीं, 2-3 sentences टुगेदर। The man in the white coat is my teacher. ओके, एक मैन है ना, तो अब व्हाइट कोट तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट जो है वो मैन है। द 4 new students arrived there. बिल्कुल ठीक है। अब पास्ट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है। पास्ट टेंस जो है सबका एक जैसा है, ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हर जगह नहीं होता। पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं है, पास्ट परफेक्ट में भी नहीं है। ही हैड गॉन, शी हैड गॉन, दे हैड गॉन, सबके लिए हैड है। प्रेजेंट परफेक्ट में फिर हैज और हैव है।
हरी अप, टाइम इज ओवर। सबमिट एनीथिंग, कोई चीज लिखो अपने गांव के बारे में। नहीं लिख सकते, कहीं मैं नहीं लिख सकता। आई कैन नॉट राइट, सॉरी सर आई कैन नॉट राइट, ताकि मैं खामखा इंतजार न करूं। इमरान खान, आई बिलोंग, अब ये आई बिलोंग जो है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ही बिलोंग्स, आई बिलोंग। आई बिलोंग टू द सिटी ऑफ फ्लावर्स एज नोन पिशावर, नहीं गलत है ना। ए के ए यहां यूज करो, एज नोन का क्या मतलब है? ये तो बच्चे भी इस तरह नहीं लिखते। ए के ए, आल्सो नोन एज। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह होना चाहिए कि आई बिलोंग टू पिशावर ए के ए द सिटी ऑफ फ्लावर्स, आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ फ्लावर्स। पिशावर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज। अभी देखो ना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। एंड कुछ लोग कहते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी, ओल्ड सिटी नहीं, ओल्ड सिटीज। And it was used as a business hub. People were to come to the Qissa Khani Bazaar to stay and take the green tea. Nowadays, Peshawar is the new skyscraper and skyscraper जो बिल्डिंग को कहते हैं। तो आप क्या कहोगे? हैज। लफ्ज क्या आएगा? हैज। वर्ब क्या आएगा? हैज। Nowadays, Peshawar has many skyscrapers, and it is an urban city of more than 4 million people living here. तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको रिवाइज करें। हारिस, हेलो आई एम फ्रॉम तहसील। अभी तहसील जो है ये प्रॉपर नाउन है, तो टी कैपिटल लिखा करो, टी कैपिटल। तहसील मंदंड डिस्ट्रिक्ट बुनेर। आई हैव, अब देखो ना ये इसने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तबाही की है। ए क्वेश्चंस एक क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चंस प्लूरल है तो उसके साथ ए कैसे आएगा यार? या तो आप कहोगे आई हैव क्वेश्चंस, या कहोगे आई हैव अ क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेजल वर्ब्स नाउ? ये आगे आएंगे भाईजान, जो आज के नोट्स है उसको पढ़े, ठीक है? आज के नोट्स हमारे क्या थे? ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और वेकेबुलरी। फोकस रहे। अब सारे मसाइल जो है आपके एक दिन में हल नहीं होंगे। आई कांट अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ फॉर पंक्चुएशन। अब देखो ना, आपने अपना दिसंबर का कोर्स पढ़ा है, ये सारी चीज़ें आगे आ रही है। पंक्चुएशन भी आ रहा है और ईडियम्स भी आ रहे हैं। एंड लास्टली, हाउ टू रीड इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड, एंड इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। फ्रॉम वेयर आई शुड टेक स्टार्ट? टेक स्टार्ट फ्रॉम माई नोट्स, जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ उधर से स्टार्ट ले ले, और उसका एक एक पेज पढ़े, एक एक पैराग्राफ पढ़े। पूरी किताब एक दिन में ना पढ़े। वी विल डिस्कस योर अदर क्वेश्चंस इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कुछ क्वेश्चंस के क्विक जवाब नहीं होते, उसके लिए घंटे घंटे तकरीर करनी पड़ती है। टुडे देयर वाज अ फायर इन, यार कोई कंटेक्स्ट दिया करो ना। डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन, कैसे फजूल बेवकूफ़ी आप करते हैं? कोई कंटेक्स्ट तो दे कि दीर अपर क्या है। वो तो तुम्हारे दिमाग में है ना कि तुम दीर अपर के हो, हमें तो नहीं पता कि किधर के हो तुम। आई बिलोंग टू दीर अपर, फिर आगे बात करो। एग्जामिनर को हमेशा बच्चा समझो कि उसको कुछ नहीं आता, आपने सारा कुछ बताना है। हमारे जहन में यह होता है कि दूसरे बंदे को सब पता होता है, दूसरे बंदे को कुछ नहीं पता। बेशक वो एग्जामिनर है, नईम खान है, टीचर है, ये है वो है, आपने सारा कुछ बताना होता है। क्योंकि टॉपिक है माई टाउन, माई सिटी, माई विलेज।
टुडे देयर वाज अ फायर इन आवर यूनिवर्सिटी शेयरिंग गर्ल विच हार्ट। अब ये आपका जो है ना, आप ये समझते कि मैं कुछ भी लिखूंगा तो बस जी मेरा प्रैक्टिस हो गया। भाई टॉपिक पे लिखो, क्वेश्चन का जवाब दे दो। कोई अंग्रेजी लिखना जो है वो प्रैक्टिस नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यू आर सिटिंग इन अ क्लास एंड अ टॉपिक हैज बीन गिवन टू यू। हमें दीरापर का कोई जियोग्राफी का नहीं पता, वो किधर है, तुम्हारा होम टाउन है, उसमें क्या होता है, और तुम हमें एक कहानी सुना रहे हो कि भाई जी आग लग गई। प्लीज ये मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं, अपने दिमाग को जरा यूज करो कि भाई चल क्या रहा है। Mujibur Rahman, my village is situated among high mountains. We call it Savur. Savur has unique geography and that geographical location play. अभी देखो ना, मुजीबुर रहमान, ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। प्रॉब्लम क्या है? प्लेज। लोकेशन जो है सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा? प्लेज। प्ले नहीं। अगर हमने प्ले लिखा तो एग्जामिनर आपके ऐसे पे इतना बड़ा क्रॉस डालेगा और आपको 100 में से 3 नंबर देगा, सिर्फ एक गलती की वजह से। इस वजह से लोग ऐसे में फेल होते हैं। ओवरऑल शंगला हैज लोअर टेम्परेचर बट आवर विलेज हैज मॉडरेट टेम्परेचर इवन इन हार्श विंटर वेदर। ठीक है, लेकिन इसको मजीद अब बेहतर कर सकते हैं। आई लिव इन अ रूरल एरिया, माई विलेज नेम। अब ये देखो ना, क्या अजीब किस्म के आप लोग गलतियां करते हैं। जब माई आ गया तो विलेज कैसे फिर बनता है यार? माई पोजेसिव है, माई विलेज, मेरा गांव। तो इसके साथ ये एपास्ट्राफी और एस लगाने के क्या तुक बनता है? आप लोग मुझे पागल करोगे। It is famous because there are many old structures present from the British era. There is a storm of Christian people from where British soldiers. बाकी ठीक है। I belong to district Swat. Swat Valley is also known as Switzerland of Pakistan. The name Swat. अब देखो ना, स्वात को आपने छोटी एस से लिख दिया तो तबाही पैर दी बस। एग्जामिनर इतना बड़ा क्रॉस डालेगा कि भाई स्वात प्रॉपर नाउन है और आप उसको छोटे एस से लिखते हो। इतना भी कोई स्टूपिड बेवकूफ हो सकता है? Suvastu, 15th largest district of the valley, was a major center of Buddhism of the ancient civilization. हाँ बाकी ठीक है, एक्सेलेंट। सुजरेंटी, अच्छे वर्ड्स आपने यूज किए हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज। नाउ सी यू इन सेफ सेक्स। प्लीज रीड द नोट्स। Join the ranks of the best and become a valuable member of the Self-Actualization Foundation today. Click on the link below or call us today to start your journey toward a rewarding and fulfilling career in the virtual world. Don't miss out on this incredible opportunity to join the Self-Actualization Foundation now.